Hello student, today we are going to know a very interesting topic that is called story writing, and this is included in your syllabus as per the CBSE guideline. In this year we are also going to face this topic in our examination. So before that, let us know how to write a good story, and in this video we will know all the intricate details those are related to write a story, or even we can say to write a good story. So let us student, चलिए जानते हैं सबसे पहले कि स्टोरी होती क्या है. दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट वी शुड सॉल्व इट आउट. सो लेट अस लर्न एंड नो दैट व्हाट इज अ सो स्टूडेंट, स्टोरी इज अ प्लॉट. जो स्टोरी होती है बच्चों, वो एक प्लॉट होती है. किस चीज़ पर बेस्ड होता है ये प्लॉट बेस्ड होता है अवर इमेजिनेशन पर. मीन्स जो हमारी इमेजिनेशन है उस पर. एंड वी कैन से इसके अलावा हमारी जो फैंटेसीज होती हैं उन पर. और हम या ये भी कह सकते हैं मीन्स किसी फॉल्स या फिक्शनल स्टेटमेंट पर. मीन्स के ये हमको अपने मन से ही प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, और इन्हीं टॉपिक्स पर हमारी जो स्टोरी होती है वो बेस्ड होती है. मीन्स जो हमारी स्टोरी का प्लॉट होगा, हमारी स्टोरी होगी, वो बेस्ड होगी ऑन इमेजिनेशन, या हम कह सकते हैं कि ओवर ऑन फैंटेसीज, या किसी फॉल्स और फिक्शनल इवेंट पर ये सारी चीज़ें बिलोंग करती हैं. तो लेट अस स्टूडेंट, चलिए जानते हैं कुछ और बातें. दोज आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस. सो स्टूडेंट, हियर वी विल टॉक about the format of the story writing. This is also very important to know, and in this we have 3 points. The first is title, second main body, and the third is moral. All these 3 points are included in our story writing. And when you are going to write the title of your story, so always remember student, it should be very catchy, attractive, and not more than 3 or 4 words, or even we should say कि 2 or 3 words. Okay student, this is your title. It should be very catchy and it should bring curiosity to the reader's mind. It should bring curiosity to the reader's mind. कि जो हमारा टाइटल है उसको देख के ही जो हमारा रीडर है उसके मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उसको पढ़ने को लेकर के. एंड देन आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट योर comes, that is called main body. What is your next point student? Main body. And in the main body student, we should always remember what we should remember. We should remember the answer of our which thing 5 W's. We should remember the answer of our 5 W's like why, where, when, who, what, and one more thing, how. These are the things that we should include in the format of our story writing or the main body. This main body having 4 marks of your mark as per the guideline of the CBSE, and according to the marking scheme, this main body contain 4 marks of your story writing student. So we should never neglect it. And how to write the main bodies we will know further also. And a good story always, here we should also know that a good story always having a moral. मीन्स जो एक अच्छी स्टोरी होती है उसमें हमेशा एक मोरल होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, अ गुड स्टोरी ऑलवेज कंटेन्स अ मोरल, और वी कैन से अ लेसन, और यू कैन से वैल्यू. मीन्स वी कैन लर्न समथिंग फ्रॉम आवर स्टोरी. Now students, this is very important to know the basic feature of a good story.
कि हमको कोई स्टोरी लिखनी है और उसके बेसिक फीचर्स जो होते हैं हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हीं को जानते हैं। दीज आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स दैट वी शुड ऑलवेज कीप इन अवर माइंड व्हेन वी आर गोइंग टू राइट अ स्टोरी इन अवर बोर्ड एग्जाम और इन अवर इंटरनल एग्जाम्स ऑल्सो। सो इन दिस सेंस फर्स्ट thing here is that character, that a good story always having some characters, but here we should follow the concept of viewers are better, means आपके कैरेक्टर्स स्टूडेंट्स जितने कम होंगे उतना ही ठीक रहेगा। मीन्स हमारी स्टोरी में एक हमारा मेन कैरेक्टर होना चाहिए, मेन कैरेक्टर, और 2 या 3 हमारे सब कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ओके, नॉट मोर देन दिस। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी आपकी स्टोरी मिसरेबल नहीं होगी। जितने ज़्यादा कैरेक्टर होंगे इट शुड बी गोज इनटू द बेड और द वर्स्ट कंडीशन इफ वी आर हैविंग मोर देन 2, 3, 4, 5 means more than 3 or 4 characters, and a good story always having a one main character and other supplementary characters, means always remember about your protagonist ke who is the protagonist of your student next story. Point is that setting. अब what is setting means when your story are beginning, जब आपकी कहानी शुरू हो रही है तो which kind of scene is going to be take place in that story, like that is starting from a forest. You are in your dining room. Your main character is kidnapped and the scene take place on the road. So what kind of the situation is given in the very first line? This is belong to the section of setting, means how you are going to start your story or how a scene taking place in student that. Here third element we can say our plot is very necessary and very important. Even we can say that plot is the actual story, means actual story around which the entire book is based. स्टूडेंट, जो आपका प्लॉट होता है इसका मतलब है कि आपकी सारी की सारी जो स्टोरी है वो किस टॉपिक पर बेस्ड है। मीन्स व्हाट इज द मेन आइडिया or the concept on which your story is going with that students. तो this is the plot of your story, means आप जो स्टोरी लिख रहे हो वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, वो उसकी थीम क्या है, वो किस वे में रन कर रही है। मीन्स वो सारा का सारा जो एसेंस है, अरोमा है, यू हैव टू शो थ्रू योर plot student. So this is also a very important element, and even we can say the next thing is that conflict, and every good story always has a conflict also. Means conflict means in the simple word you can say a good story always having some problems that should be resolved by the protagonist. मीन्स जो हमारी कहानी का स्टोरी का मेन कैरेक्टर है उसी के द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, तभी एक अच्छी स्टोरी बनती है। एंड इन द लास्ट आवर लास्ट एंड द मेन पॉइंट इज दैट resolution. And what is resolution, student? Resolution you can say the solution. Means in the last our main character always solves the problem. And in this sense we come to the end of our story, and at last
वी फिनिशेस इट। अब एक्चुअली स्टूडेंट होता क्या है, अब इसको मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। देखिए, बेसिक फीचर ऑफ अ गुड स्टोरी मीन्स हियर आई शुड से बेसिक फीचर ऑफ अ गुड स्टोरी, एक जो अच्छी कहानी होती है दैट इज़ ऑलवेज हैविंग सम कैरेक्टर्स, उसमें हमेशा कुछ कैरेक्टर होते हैं, एंड फ्यूअर आर बेटर, थोड़े कैरेक्टर ही बेहतर होते हैं। आपको 2, 3, 4 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं रखने, एंड वन कैरेक्टर आपका मेन होता है, एंड इवन इट कैन बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर स्टोरी, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है मेन कैरेक्टर्स। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सेटिंग करना है। अब बच्चों सेटिंग क्या है मैं दोबारा बताता हूँ, मीन्स लोकेशन ऑफ द सेक्शन शुड बी डिस्क्राइब्ड। Location of the section should be described through the setting at where the scene taking place, means forest है, या वो prison है, या वो mountain hills है, you are standing or your protagonist is standing on the hill, on the cliff of a hill, like that. And plot is the base on the or the main essence of your story, means you can say actually story which is the entire book is based off your story, means कि एक ऐसी किताब है जिस पर आपकी सारी की सारी कहानी बेस्ड ही है। नेक्स्ट बात आती है कॉन्फ्लिक्ट्स। अब बच्चों कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, मीन्स एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी परेशानी जो होती है कहानी में, जिसके द्वारा सारी की सारी प्रॉब्लम अरोज होती हैं, सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। एंड रेजोल्यूशन मीन्स हाउ टू रिसॉल्व, कैसे वो रिसॉल्व होती हैं, कैसे प्रॉब्लम को एनालिस किया जाता है और उसके बाद में सॉल्व किया जाता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसी के द्वारा। ये हम लास्ट में इसको रखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नीडेड टू राइट अ गुड स्टोरी। सो स्टूडेंट, दीज आर द बेसिक फीचर ऑफ अ गुड स्टोरी that we should always keep in our mind while we are going to write a good story student. I hope कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। Now students, here are some of the things that we should always keep in our mind, means we should always remember while we are writing a story. हमें इनको हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम स्टोरी लिख रहे हैं। लाइक के टाइटल शुड बी इंटरेस्टिंग एंड शुड ब्रिंग क्यूरियोसिटी, कि जो हमारा टाइटल है स्टोरी का वो हमेशा इंटरेस्टिंग होना चाहिए और क्यूरियोसिटी वाला होना चाहिए, दैट कैन अरोज द क्यूरियोसिटी इनसाइड द माइंड ऑफ द रीडर्स, जिससे कि वो हमारे टाइटल को देखकर ही स्टोरी को पढ़ना चाहें। तो सीन शुड बी प्लान्ड, जो हमारा सीन होना चाहिए वो प्लान्ड होना चाहिए। एंड लॉजिकल सीरीज ऑफ इवेंट शुड बी फॉलोड, मीन्स जब भी कोई सीन जा रहा है वो हमारा वेल प्लान्ड होना चाहिए, ठीक से हमने उसको सेटअप किया हुआ होना चाहिए। एंड एक लॉजिकल सीरीज ऑफ इवेंट, जो भी घटनाएं हमारे उसमें हो रही हैं वो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो किडनैपर है उसने किसी को किडनैप किया भी नहीं है और वो पहले ही फिरौती मांगने लगा, पहले ही रैंसम की डिमांड कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले वो किडनैप करेगा, देन आफ्टर ही विल आस्क अबाउट द रैंसम्स। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ही इज़ आस्किंग अबाउट द रैंसम एंड देन ही इज़ किडनैप टू अवर प्रोटैगनिस्ट और द अदर सब कैरेक्टर्स। सो ऑल द थिंग्स शुड बी लॉजिकल एंड अ सीरीज ऑफ इवेंट should be followed. Next, the third point is that is also very important कि character descriptions. Student, when we are going to discuss about the characters, so we should depict him in a very interesting and convincing way, that who is our main character, means we should elaborate his qualities, like we can show some kind of qualities of our protagonist or the main character or the any one characters, like he is having much courage to stand in the oddities, or even we can say that he is having so courage to face those challenges in his life, or like this we can say कि हमें अपने जो कैरेक्टर है उसको इलेबोरेट करना है, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल वी कैन ऑल्सो इलेबोरेट अवर कैरेक्टर्स, लाइक हाउ ही इज़ लुकिंग, शी इज़ फैट, like some kind of the things we can include to elaborate our characters. So this is the third element, and we can say fourth point is that story should be in past tense, कि जो हमारी स्टोरी है that should be in past tense, means हमको यहाँ पर फॉलो करना है किन चीज़ों को, जैसे हमारा स्टूडेंट डिड होता है, हमारी V2 होती है, हैड होता है, इसके अलावा हमारा वॉज होता है, हमारा वर होता है।
तो in respect of our fourth point we can say story should be in past, means when I went there then I saw, जब मैं वहाँ गया मैंने देखा some men were kidnapping two बॉयज़ के, कुछ आदमी वर किडनैपिंग कर रहे थे 2 बॉयज़ को. सो लाइक इन दिस सेंस वी शुड गो थ्रू दैट. तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्टोरी शुड बी इन पास्ट टेंस एंड दैट विल बी मोर इम्पैक्टफुल. Next is that our fifth point we can say कि do not exceed given word limit, means if the examiner is asking about us 80 to 100, so we should mention our story between this word limit. Means अगर हम 10-5 वर्ड ऊपर नीचे हो रहे हैं that is okay, but even if we are writing 2, 3, 4 पेजेस की स्टोरी हम लिख रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ गुड डील के हमसे जो कहा गया है हमको उतना ही करना है एंड एक्सीडिंग वर्ड लिमिट पे मार्क्स कटते हैं स्टूडेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके स्टूडेंट, एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट डू नॉट मेक ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर्स, कि हमको नहीं बनाना है ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर जो होता है उनको. एक्चुअली क्यों नहीं बनाना है स्टूडेंट? बिकॉज स्टोरी जब हम लिखते हैं, जब हम स्टोरी को करते हैं तो इट शोज़ अवर कैपेबिलिटी, इट शोज़ अवर एबिलिटी टू राइट द थिंग्स और हाउ कैन वी थिंक, व्हाट काइंड ऑफ अवर इमेजिनेशंस, हमारी कैसी इमेजिनेशन है, हम किस तरीके से लिख सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें जज की जाती हैं और एंड इन द राइटिंग सेक्शन इट कैन नॉट बी बियरेबल दैट वी आर मेकिंग मिस्टेक्स इन ग्रामेटिकल और द स्पेलिंग लाइक दैट. सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट हमने ध्यान रखना है कि ग्रामेटिकल या स्पेलिंग एरर को भी नहीं करना है स्टूडेंट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मार्किंग स्कीम ऑफ स्टोरी राइटिंग. सो स्टूडेंट्स वी कैन से हियर दैट योर टाइटल एंड योर मोरल कंटेन 1 mark according to the new guideline or new policy of CBSE की न्यू पॉलिसी के मुताबिक हमारा टाइटल एंड मोरल बोथ विल कंटेन 1 mark एंड योर मेन बॉडी विल कंटेन 4 marks स्टूडेंट. कि जो आपकी मेन बॉडी है वो आपकी 4 marks को कंटेन करेगी. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने टाइटल ही नहीं लिखा है तो शुरू में ही आपका 1 mark डिटेक्ट हो जाएगा. तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना है. एंड in the same series the next thing is that thank you students. और मैं आपसे बस अब इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका बहुत धन्यवाद. और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है स्टूडेंट तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि सर हमने इसको यहाँ तक देखा है और आप कहाँ से हैं ये भी बताना ना. और साथ ही स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. बाकी बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू सो मच. बाय स्टूडेंट्स, मिलेंगे एक अगली प्यारी सी वीडियो में.